हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का मॉक। ये हमारा दूसरा मॉक है और ये 22 जून 2019 का जो पेपर हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सेशन इंग्लिश का है, 30 क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। तो द फ्यूचर इज़ अबाउट एक्सेस एनीवेयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन बोथ लोकली एंड ग्लोबली। टीचिंग एंड लर्निंग आर गोइंग टू बी सोशल इंटरेक्टिव. Schools of the future could have a traditional cohort of students as well as only students who live across the country or even the world. Things are already starting to move this way with the emergence of massive open online courses (MOOCs). The future of technology in education is the cloud. School will only need one major thing to be prepared for future. They will not need software installed, servers or local file storage. Schools will need a fast, robust internet connection. Infrastructure is paramount to the future of technology in education. Teachers can use the cloud to collect and grade work online. Students will have instant access to grades, comments and work via computer, smartphone, tablet. This is where devices come in. All devices, no matter which one we will use in the future, we will need to access the cloud. Each student will have their own, either a device specified by the school or one they have chosen to bring in themselves. School classrooms are going to change. With the cloud, the world will be our classroom. E-learning will change teaching and learning. Students can learn from anywhere and teachers can teach from anywhere. The cloud can also encourage independent learning. Teacher could adopt a flipped classroom approach more often. Flipped classroom approach. Students will take ownership of their own learning. Teachers can put resources online for students' use. These could be videos, documents, audio postcard, podcasts, or interactive images. All these resources can be accessed by the student's computer, smartphone, or tablet. As long as they have internet connection, either a Wi-Fi, 3G, or 4G, they are good to go. Rather than being taught, the student can learn independently and in their own way. There is also a massive amount of resources online that students can find and use themselves without the help of the teacher. This is, of course, means the role of the teacher will change. What we must remember is that when school adopt new technology and services, they must be evaluated. This way, as a school, you know if they are successful and what improvements are needed. Staff will also need training. You can't expect staff to use new technology if they are not confident users or creators. Any initiative is doomed to failure without well-trained, confident staff who can see how technology can support and benefit teaching and learning. Plenty of schools have already embraced this, but there is still a long way to go to ensure all schools are all ready for the future of technology. It is time for all schools to embrace the cloud. What does the author mean by the sentence the future of technologies in education is cloud? तो यहाँ पे क्लाउड की बात की गई है, क्या मतलब है इस बात का? तो क्लाउड कंप्यूटिंग विल चेंज द नेचर ऑफ एजुकेशन. The education sector will be terribly hit by monsoon. The education sector is facing some dark times. The education sector has come up with huge plans to might come true. तो इसमें ये होगा पहला वाला. Education in the future will be more accessible locally and globally. बिल्कुल सही बात है. Teaching and learning will become more social and interactive. ये शायद नहीं है. School in future have students who attend physically and online students spread all over the world. Massive open online resources are the first step in this change. MOOC. तो ये तो सारे सही लग रहे हैं वैसे तो और भी लगा रहा हूँ मैं. What according to the passage might be the reason इनिशिएटिव का डूम होने का क्या रीज़न है? तो इसमें स्टाफ की बात हुई है. सुटेबल टाइटल पहला वाला ही हो जाएगा. हाउ आर द स्कूल्स क्लासरूम आर गोइंग टू चेंज. तो ठीक है, पहले भी ठीक है, ठीक है, दूसरा भी, तीनों ही ठीक है वैसे तो. मैसिव का एंटोनिम पूछ रहा है. प्यूनी हो जाएगा, प्यूनी. प्यूनी प्यूनी. एंश्योर का सिनोनिम पूछ रहा है. एश्योर का मतलब तो एश्योर होगा. अडॉप्ट का सिनोनिम पूछ रहा है. अडॉप्ट का एक्सेप्ट होगा. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग टीचर
टीचर्स डेट द स्कूल हैव एवर हैड, ठीक है। नो लेस देन 50 गर्ल्स टुक पार्ट, बिफोर लॉन्ग we will all be old and realize that health is preferable to well, preferable खुद एक अपना में वो है, ठीक है। I think that the rose is the reputation was the one thing that she got without merit and lost without fault. Reputation was the one thing that she got without merit. तो इसमें क्या हो सकता है, इसका हो सकता है गॉट होगा, गॉट सही है। The aforementioned position was to be closed for the candidates possessing a score of 160 or lower. The aforementioned position was to be closed यार इसमें तो was to be closed होना चाहिए ना सेकंड वाले में। The cold mist have नहीं होगा, has होगा। Try hard as he might, Alvira knew her brother could never hope to regain his health. तो try as hard as he might, पहला ही होगा। Little does the king knew that an evil plan was already being hatched in his palace at the moment. दूसरा होगा, he was aware that the oath he had taken was soon to be proven too disastrous समझ नहीं आ रहा है, यही हो सकता है गलत। had they had seen us misappropriate their belongings, they would have been enraged. तो had they had seen us misappropriate their belongings, misappropriate तो नहीं होगा, misappropriating होगा। their belongings, they would have been enraged, would have been आ रहा ना, तो had they seen us, पहला भी गलत लग रहा है मुझे, दूसरा भी गलत लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें मैं दूसरा लगाऊंगा, या पहला लगा लेता हूँ यार, देखते हैं, इसमें गैस कर रहा हूँ मैं इस बारे में। द रेजिंग स्टॉर्म फॉलोड द मैन, inevitable swallowing up everything in its path. तो the raging storm followed the man, inevitable swallowing up everything in its path. इनएविटेबल का मतलब जिसको रोका ना सके, जो होने वाला है, तो इनएविटेबली होगा मेरे हिसाब से। तो एडवर्ब सही से नहीं लगाया उन्होंने। द एक्चुअल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वेरी among jurisdiction and are seldom if never clear. The actual legal responsibilities may vary from jurisdictions होगा। Had Rekha not discouraged me, I may have sung a, had Rekha not discouraged me, I might होगा, might. If we have players like Ronaldo in our team, we would have qualified for the FIFA World Cup long ago. If we had होगा had,
पहला। अच्छा, इसमें है सेकंड में कौन सा होगा, पहले तो पूरे अरेंज कर लेते हैं एक बार सही से ज़रा। तो इसमें आपका पढ़ लेते हैं एक बार। बट शी ब्रूटली स्नैप्ड आउट ऑफ हर डे ड्रीम्स व्हेन द बॉस आस्क्ड हर टू वर्क फॉर सम मोर हार्स आफ्टर द क्लोजिंग टाइम। ऑल शी वांटेड टू डू वाज गो होम एंड स्नगल इन हर बेड विद अ हॉट मग ऑफ कोकोआ। फिर इसके बाद है इट हैड बीन अ लॉन्ग टायरिंग वीक फॉर डेजी। अच्छा, तो पहले तो मुझे लग रहा है इसका ना ये होगा। तो इसमें सबसे पहला होगा सी, इट हैड बीन लॉन्ग टायरिंग वीक फॉर डेजी। फिर इसके बाद होगा बी, कि ऑल शी वांटेड टू डू वाज गो होम एंड स्नगल इन हर बेड विद अ हॉट मग ऑफ कोकोआ। फिर होगा ए, कि बट शी वॉज ब्रूटली स्टैम्प्ड आउट ऑफ हर डे ड्रीम्स व्हेन द बॉस आस्क्ड her to work for some more hours after the closing time। फिर फिर होगा डी, फिर होगा ई, CBADE। तो कह रहा है सेकेंड सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, सी होना चाहिए। थर्ड कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। फिफ्थ कौन सा होना चाहिए, ई होना चाहिए। फोर्थ कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। द प्रिंस वॉज टेकन अबैक बट ही डिडंट डेयर टू इनरेज हिज फादर। कह रहा है इसमें कि एक्सेप्टेबल नहीं है वो बताना। तो द प्रिंस वॉज टेकन अबैक बट ही डिड नॉट डेयर टू इनरेज हिज फादर। ही डिड नॉट डेयर टू एनरेज हिज फादर। यार इसमें तो द प्रिंस वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक होता है, टेकन बैक होता है, टू टेकन अबैक। सारी से लग रहा है मुझे भाई। एज पर द रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस्ड बाय द कैंपेनी, कैंपेनी क्या होता है यार। चलो, तो 16 मिनट में हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सही किया नहीं किया। तो पहला सेंटेंस था इसमें कि व्हाट द ऑथर मीन्स द सेंटेंस द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ द क्लाउड। क्लाउड की बात हो रही है, तो ये तो ठीक है। सेकंड वाला, हाँ इसको देखना ज़रा, कह रहा कौन सा ट्रू है। तो एजुकेशन इन द फ्यूचर विल बी मोर एक्सेसिबल लोकली एंड ग्लोबली, क्या ये बात है। तो ये है कि एक्सेस एनीवेयर लर्निंग एंड कोलैबोरेशन बोथ लोकली एंड ग्लोबली, ये बात तो है। टीचिंग एंड लर्निंग विल बिकम मोर सोशल एंड इंटरेक्टिव, ये बात है कहीं, ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हाँ ये लिखा है, टीचिंग एंड लर्निंग आर गोइंग टू बी सोशल एंड इंटरेक्टिव, ये बात भी ठीक है। फिर तीसरी बात देख लेते हैं, स्कूल्स इन फ्यूचर विल हैव स्टूडेंट्स हु अटेंड फिजिकली एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्प्रेड ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा देखो, इसमें ट्रिक है कि अगर दो ठीक हैं तो ये सारे ठीक होंगे, क्योंकि दो तो हो नहीं सकते, ऑल ऑफ दीज आएगा तो ठीक है। अगला आ रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज माइट बी द रीजन डेट माइट लीड टू द डूम ऑफ इनिशिएटिव। डूम ऑफ इनिशिएटिव मतलब कि क्या है जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव जो है खतरे में पड़ सकता है। तो ये तीसरी वाली बात मेरे पास में तो ठीक है। चौथा, सूटेबल टाइटल, तो एक बार देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा कोई और अच्छा सा टाइटल दिख रहा है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग द न्यू एरा ऑफ ग्लोबल एजुकेशन। देखो ये जो मैंने लिखा है ना ये गलत है,
कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब द न्यू एरा ऑफ ग्लोबल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन, ये हो सकता है। यही भी हो सकता है एजुकेशन इन द क्लाउड, एजुकेशन इन द क्लाउड हो सकता है मेरे हिसाब से। द क्लासरूम विल स्पैन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ये बात देख लेते हैं एक बार है लिखी हुई है नहीं कहीं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हम्म, 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 ये बात यहाँ पे लिखी हुई है क्या कहीं? ये लिखा है इसमें, हाउ आर द स्कूल क्लासरूम्स आर गोइंग टू चेंज, द स्कूल विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये बात तो ठीक है। टीचर्स विल बी एबल टू टीच फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये बात भी ठीक है। हाँ ठीक है यार। मैसेज का क्या है, एंटोनी पूछ रहा है। प्यूनी ही होगा। इंश्योर का सिनोनी पूछ रहा है। इंश्योर का मतलब होता है कोई बात इंश्योर करना है, यानी कि समझ रहे हो इंग्लिश में। तो प्रेशर हो नहीं सकता, लेवर हो नहीं सकता, प्रोक्योर हो नहीं सकता, अश्योर ही होगा। अडॉप्ट, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग टीचर्स दैट द स्कूल एवर हैड, ठीक है। नो, नो लेस देन, यार नो लेस देन होता है, नॉट लेस देन होता है। ठीक, नो लेस देन होगा, फ्यूअर देन होगा, फ्यूअर फ्यूअर फ्यूअर, फ्यू होगा मेरे हिसाब से तो। इसके बाद है, बिफोर लॉन्ग वी विल ऑल बी ओल्ड एंड रियलाइज दैट हेल्थ इज, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, ये मोर प्रेफरेबल होगा। इसमें कंफ्यूज हूँ मैं, प्रेफरेबल पे जा रहा हूँ मैं। आई थिंक दैट द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, ये ठीक है। रेपुटेशन वॉज वन ऑफ द थिंग दैट शी गॉट विदाउट मेरिट, द aforementioned position was to be closed for the candidates, दूसरा, the cold mist has engulfed, try hard as he might, Alvira knew her brother could never hoped to regain his wealth, तो try hard as he might, Alvira knew her brother could never hoped, could never hoped, होप होगा ना, could never hope, तीसरा होगा मेरे हिसाब से इसका। Little does the king knew, he was aware that the oath he had taken was soon to be proven to be disastrous. Had they seen us misappropriating their belongings, had seen her, यार इसमें सेकंड वाला होगा, मेरे तो ये गट फीलिंग यही कह रही है। The raging storm followed the man, inevitably swallowing up. The actual legal responsibilities may vary among jurisdictions and are seldom, among की जगह तो तीसरा ही आएगा, ठीक है। Had Rekha not discouraged me, I might. If we have players like Ronaldo in our team, we would have qualified.
ठीक है, चलो क्वांट आ गया भाई 34,500 यानी कि 3450 अपॉन 46 इंटू 25। 25 एकम 25, 25 और ये होते हैं 25 9 9 5, 25 3 75, बचेंगे 20, 25 200, 40 दियाँ। आगे बढ़ लेते हैं। 199 प्लस 125 यानी कि 5 से डिवाइड करा है, तो 125 अपॉन 4 इंटू 16, 4 125 चार आ रहे हैं, होगा यहाँ पे 500 प्लस 199 799, 500 होगा ना, 125 चौक 416, 500 प्लस 199 699 होना चाहिए ना, 699 है कहीं नहीं है, तो या फिर नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, 196 प्लस 42 इंटू 11 माइनस 170 यानी 22 का 2 44 टू 46 माइनस 171 कर, 2 जगह 1 16 में 7 9 या बचेगी 3 जगह 2 196 प्लस का 6 7 9 9 18 4। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 11/9 इंटू 40/19 डिवाइड बाय 6 18 टू 23/20 220 जा 20 40 और यहाँ पर आएगा तुम्हारा 3 3 9 19 357 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स यानी 57 2 जा, तो यहाँ पर आएगा 44 प्लस 2 की 57 से नहीं हुई है, तो 321 का 2 3 2 16 17 4 1 5 7 11 57 2, तो कटेगा तो नहीं किसी से, बाद में करते हैं इसको यार। इसको करते हैं 15 प्लस ये जो है 18/7 होगा, 5 10 4 14/2 होगा। ठीक है, डिवाइड किया है इसको इन्हें 54 टू 56/9 इंटू 18/7 9 2 जा 7 8 जा 2 9 जा 7 2 जा 9 2 8 2 2 से 2 कटा 9/8 15 प्लस 9/8 क्या होगा ये 15 8 जा 120 9/8 ये वाला। इसके बाद आ रहा है ये 46 प्लस 1/4 एक्स प्लस 1289 बराबर 1340, तो 1340 उधर जाएंगे माइनस करेंगे तो पाएगा 1294 इंटू 4। ठीक है, तो 416 3 11 3 4 2 8 3 11 का 1 कैरी 1 4 4 5 माइनस का 1289 9 7 100 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेंगे 10 में 2 गया 8 और यह इसका आंसर होगा। आगे बढ़ लेते हैं। 36% और 450 36 इंटू 45/10 5 45 टू 10 2 18 जा 89 से कितने होते हैं 162 प्लस एक्स अपॉन 35 इंटू 10 463 3 में से 2 गया 1 6 में 6 गया 0 4 में से गया 3 3 0 1 0 35 5 से 35 5 से 30 5 to 10 7 56 7 से 42। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। सवाल है आपका 15 इंटू 184 माइनस 27 15 इंटू 184 प्लस 27, तो तुम्हारा अगर यहाँ से मैं करूँ तो 15 को 60 होते हैं 0 6 15 120 6 12 15 27 होते हैं प्लस 27 7 6 2 9 7 2 7 9 7 माइनस 59, तो 7 में हो गया 8 3 2 7 3 8 3 8 और इसमें क्या करेंगे 12 में 12 नहीं 13 माइनस 13 कर देंगे, यहाँ 8 में 3 का 5 3 से गया 2 2 7 2 5 2 7 2 5 2 7 2 5 2 7 1 5 है यार, तो हो सकता है कुछ गलती हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 7 सच्ची यानी कि यहाँ पर आएगा 14 28 8 9
14,98 0 इंटू 15 प्लस 340 यानी कि 15 0 0 15 105 का 5 करीब 10 40 4 50 प्लस 340 यानी कि 0 का 5 4 9 43 90 55 प्लस 8 इंटू 3/4 यानी 6 55 माइनस 6 यानी कि 49। आगे बढ़ लेते हैं। वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी 7 4 3 12 यानी कि एक्स वैल्यू आएगी 4 एक्स वैल्यू आएगी 3। वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी -5 -6 प्लस 5 यानी कि 6 और माइनस का 5। तो वही इसमें तो कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक्स की दोनों वैल्यू ये व्यू करते हैं बाद में, आज ये क्वाड्रेटिक वाले ना, फिर इसको देखते हैं। कह रहा टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय सचिन एंड मृदुल इन बोथ ईयर्स इज हाउ मच मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बाय प्रवीण एंड विशु। सचिन एंड मृदुल इन बोथ ईयर्स, सचिन एंड मृदुल इन बोथ ईयर्स, सचिन एंड मृदुल यानी कि 30 और 50 80 सचिन ने, सॉरी मृदुल ने। और यहाँ बात करें मृदुल की तो इसने पढ़ी है 80 और 90 यानी 170, कुल मिला के हो रही है 815, 250 बुक हो रही है। और अगर प्रवीण और विष्णु की बात करें तो प्रवीण ने पढ़ी है आपकी 60 70 यानी कि 130, और विष्णु ने पढ़ी है 40 और 50 यानी कि 130 और 90 यानी कि 220। तो कह रहा है इज़ हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर बुक्स प्रवीण एंड विष्णु। तो मोर है भाई, 30 मोर है, 30 मोर है 30। आगे बढ़ लेते हैं। कह रहे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द बुक्स रीड बाय ऑल देम इन बोथ द ईयर्स। अच्छा, तो यहाँ सबको जोड़ना है, तो हम सचिन और मृदुल को जोड़ चुके हैं कितना 250 और 220 यानी कि 470 जोड़ चुके हैं। हम इसका जोड़ लेते हैं, जोड़ चुके हैं सबका यार। बुक्स रेड बाय परवीन इन द ईयर 2015 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय मृदुल इन द ईयर 2015। प्रवीण ने 2015 में कितनी बुक पढ़ी है? प्रवीण ने 2015 में, 2015 डार्क वाला है, तो ये पढ़ी है 70। और मृदुल ने कितनी पढ़ी 2015 में? 80। तो 10/80 इंटू 100, 100/8 यानी 12.5। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय ऑल ऑफ देम इन 2016। 2016 में एवरेज क्या है? 2016 में यानी कि हल्का वाला 40 90 यानी कि 90 40 130, 40 और 90 130, 130 और 50 180, 180 और 60 240/4 60। इसके बाद है फाइनल रेशियो ऑफ द सम ऑफ बुक नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय विष्णु एंड मृदुल टुगेदर इन 2015। विष्णु एंड मृदुल ने 2015 यानी डार्क वाले में कितनी पढ़ी है? तो 50 और 80 130 विद द सम ऑफ नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय सचिन एंड प्रवीण इन 2015। सचिन और प्रवीण ने कितनी पढ़ी है 2015 में? तो 30 और 70 यानी 100, 13 10 होगा। आगे बढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एन अमाउंट इज टू डिस्टर्ब अमंग अभिषेक एंड पृथा इन रेशियो 5:7। अभिषेक गेट 2000 लेस यानी कि 2000 है, इसको मिलोगे 5000, इसको मिलोगे 7000। देन फाइंड द अभिषेक शेयर। अभिषेक शेयर कितना है? तो अभिषेक शेयर है 5000। अगला है वाइट का रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 का मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ब्लैक कार एट द स्पीड ऑफ 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है 32 मीटर बिहाइंड है यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड की इनकी रिलेटिव स्पीड होगी और 32 करना है। तो 5 से 30 5 से 20। आगे बढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एट वॉट परसेंट अब, ठीक है। तो एक्स का 27 कितने उसको रखे 20% का फायदा हो, अगर आफ्टर गिविंग डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट देता है। यानी कि अगर 100x है 25x मतलब 75x का वो बेचता है और 75x को 20% का फ़ायदा हो, यानी कि 100/120 करना है। तो 10/12 ये यानी इसका सीपी होना चाहिए 75x इंटू 5/6 और एम पी क्या है 100x है, 6 को ऊपर लेगा 520 का कर ले तो 120/75 कर ले
75 कर ले, यानी कि 25 से निकाल पाएगा, 5 से काट जाएगा, 5 में 5 15, ऐसे कर लेना 75, और ये कितना 45 अपॉन 100। तो 25 में 75, 25 चौक 100, 3 15, अरे यही आ रहा है यार, 75 इंटू 5/6, तो 100 इंटू 6 अपॉन 75 इंटू 5, 25 3 75, 25 चौक 100, 5 3 15, 15 9 24, 9/15 इंटू 100, 39 3 5 15, 5 2 जा 60 आ रहा है यार, 60 आ रहा भाई। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेंगे इसको बाद में, टाइम तो मिलने वाला है नहीं। कह रहा है इसके बाद, ए बोट टेक्स 6 आवर्स लेस डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, द बोट्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना, अरे यार इतना ईजी है, 9 + 3 12, ये 9 में 3 6, कह रहा है 6 घंटे लगते हैं, अच्छा 6 घंटे कम लगते हैं टू ट्रेवल दैन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो 12 और 6, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी स्पीड बतानी है, तो भाई ठीक है, तो x/12 x/6 माइनस x/12 कितने घंटे लगते हैं 6, तो 12x - 6x, यानी कि x 12 - 6 कितना होगा 6 अपॉन 6 इंटू 12 बराबर 6, 6 कट गया 72 किलोमीटर, तो मेरे मान टोटल डिस्टेंस 72 दूनी 144 होते हैं। इसके बाद आ रहा है ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है, क्या रेशियो है प्रेजेंट एज का रेशियो, जब प्रेजेंट एज बी की एज 4 साल पहले का रेशियो है 7:8, 7:8 है, ठीक है। तो बी की परसेंटेज, ए की परसेंटेज मान लेता हूँ मैं एक्स है, और उसकी 4 साल पहले कितनी होगी x-4, ठीक है। और ये ऐसा करो ना, 7x इसकी मान लो, 8x इसकी मान लो, 8x 4 साल पहले, अब कितनी है 8x + 4, और इसकी 7x है अभी, तो कह रहे हैं आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि 7x + 8 और 8x + 8 से 12, ये कितना होगा 7x + 8 अपॉन 8x + 12, ये होगा 9/11। तो यहाँ से अगर तुम करोगे तो 70x + 88, 70x + 108, यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ आ जाएगा 88, 10 98 10 में 20, x/4, x/4, तो 8 32, यानी 32 + 4 36, बहुत देर में हुआ यार ये सवाल तो। कह रहे हैं 40 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 4:1, यानी कि 4:1 है, तो इसमें क्या होगा 4:1 का मतलब हो गया 36 और 4 ना 5 8, 32 और 8, मिल्क होगा 32, वाटर होगा 8। कह रहे हैं 20 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट, 20 लीटर बाहर निकाल लिया, 20 लीटर मतलब हो गया कि इन्होंने निकाला है 4:1, यानी कि इसमें निकला है 16 तो मिल्क बाहर और 4 निकला है वाटर बाहर, ठीक है। एंड 10 लीटर वाटर वॉज एडेड, तो कुल मिला के वाटर 4 लीटर बाहर निकला, 6 लीटर 10 लीटर आया तो 6 लीटर प्लस हुआ है, और -16 बाहर हुआ है, तो नई क्वांटिटी बनानी है, 14 हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, कह रहे हैं ए एंड बी एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप विद कैपिटल ऑफ 5:6, ठीक है। 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया, ए रेशियो बी का कैपिटल है, 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया, और विद द हाफ ऑफ कैपिटल देन बी, तो कैपिटल सी की थी 3, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर शेयर बताना है, तो 5 × 12, 6 × 12 और 3 × 6, रेशियो बताना जल्दी से ज़रा, तो यहाँ से 6 से 6 कटेगा, दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 3, ये रेशियो होगा। द शेयर ऑफ ए इन टोटल प्रॉफिट इज 2400, 2400 ए का शेयर था, यानी 10/12, 10 22 3 25 ऑफ एक्स बराबर 2400, तो एक्स बराबर 2400 इंटू 240 इंटू 25, शी का शेयर पूछा है तो 3/25, 24 दिया 7200, यानी 720 आ जाएगा। अब कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम मनी
20% एट 20% फॉर सेकेंड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर इज़ 1200। तो भाई पहले ये बताओ, अगर 100x कोई मनी है तो एक साल बाद कितनी होगी? 121 एक्स होगी। और पहले साल में 100x है, दूसरे साल में 121x होगी, तीसरे साल में 1331x होगी। मैंने 1000 मानी है, ठीक है, 1000x 12 10 x 132x। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो 21x बराबर कितना है? अच्छा 21x नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि 5/6 है ना, तो मतलब 6/5 है, 20% है, तो 20% मतलब हो गया 6/5। ठीक है, तो हम लोग ये कर रहे थे, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन मनी इतना दे रखा है। तो हम बात करें तो 6/5 होगा एक साल का, 36/25 होगा दूसरे साल का। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1/5, या मिलेगा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 25/9 या 25/11। तो 11 माइनस 1 10 होता है, कितना मिल रहा है हमें? 10 की वैल्यू है 1200। तो यानी 10 की वैल्यू 1200 है, यानी कि 1 की वैल्यू 120 है, तो 720 7200 होगा उसका एक पहले ईयर का, यानी कि 6000 होगा, 6000। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा यार, जल्दीबाजी में। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 18 पीपल इन 25 ईयर्स आफ्टर इंक्लूडिंग मोर पर्सन, यानी कि 25 इंटू 10 करेंगे 250, 25 8 200, यानी कि ये हो गया 450 लोगों का हो गया। इंक्लूडिंग 3 मोर पर्सन, द एवरेज इज 3 इंक्रीज बाय 3 ईयर्स, यानी कि 28 हो गई। तो 18 3 21 इंटू 28, तो 28 कम 28 का 8 करिए 20, 28 दूनी 56, 56 20 76, तो 768 माइनस, तो इस बार करेंगे 8 6 5 एक सामने करके 3 318/3 3 अच्छा, तो 768 नहीं आ रहा है यहाँ पे। 28 कम 28 का 8 करिए 2, 28 दूनी 56 2 58 588, 588 और 450, 8 5 या 3 138 1 3 3 4 12 3 18 46 आ रहा है। इसके बाद है अगला, इसमें कह रहा है हमसे द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इन 2:3, एरिया दे रखा है 96, यानी कि 5x इज 96, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पर 96, यानी एक्स बराबर 96/5। अच्छा, 2:3, एरिया दे रखा है 96, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 96/5, पेरीमीटर पूछा है, तो ये तो सवाल ही ऐसा लग रहा है अजीब सा। ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2l + b, यानी कि 2x + 3x, यानी 5x, 10x होगा 10x। यार ये तो सवाल ही अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। इसी नंबर पूछ रहा है 2.5 का 2 5, 3 चौगुना, फिर 5वां 65 300, 4 - 1 3 + 1 4, -1 + 1, फिर 4 से 9 हुआ है, यानी कि +5, 9 से 32 हुआ है, 4 से 9 हुआ है, इसी नंबर पूछा है। तो 4 इंटू 4 -1, फिर +1 -1 +1, फिर 9 से मतलब फिर +4 +5, 9 से 32, यानी कि 23 +23, 4 2 8 19, 4 2 8 19, नहीं आया समझ में। 3 4 3 7 2 9, तो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, फिर 11 का क्यूब, फिर 13 का क्यूब, फिर 17 का क्यूब, 4913, फिर 3 7 5, 15 का क्यूब, हाँ ठीक है।
यार मैथ में तो कम ही हुए हैं, मैथ में यार कम हो पाए, कोई बात नहीं। इसमें कह रहा है 8 पीपल पी क्यू आर एस टी वी आर एस रिटर्न, ये बाद में करते हैं, पहले हम छोटे सवाल करते हैं, जितने छोटे छोटे सवाल हैं ये करते हैं पहले। कह रहा है पोल बी इज़ 6 मीटर वेस्ट टू द पॉइंट ए, यानी कि पोल बी है वो 6 मीटर है, तो पोल बी 6 मीटर कैसे होगा, ये रहा ए है, ये है बी 6 मीटर, पॉइंट सी इज़ 4 मीटर नॉट टू द पॉइंट बी, लीजिए। फिर कह रहा है पॉइंट जी इज़ बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, जी हो गया 2 मीटर पे। फिर पॉइंट एच इज़ 12 मीटर साउथ टू द पॉइंट सी, पॉइंट सी के साउथ में 12 मीटर, यानी कि 4 और 8 क्या मिलेगा हमें, पॉइंट जी नहीं पॉइंट एच। अब पॉइंट डी 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी के वेस्ट में 3 मीटर मिलेगा पॉइंट डी। फिर एंड पॉइंट एफ इज़ 4 मीटर साउथ टू द पॉइंट ऑफ डी, पॉइंट एफ जो है 4 मीटर है साउथ टू द पॉइंट डी। इसके बाद कह रहा है पॉइंट ई इज़ 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट ई जो है वो 3 मीटर है ईस्ट में एच के, लीजिए भाई एच के 3 मीटर ईस्ट में हो गया पॉइंट ई। व्हाट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी, तो एफ और ई के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो ये मिलेगी आपको, ये कितनी है 3 और ये कितनी है 3, यानी ये पूरी 6 होगी, ये 6 होगी और ये कितनी है 8 10। व्हाट इज़ ऑन ऑड वन आउट, एफ सी जी एच, एफ सी विच इज नॉट ऑड वन आउट, एफ सी जी और एच, ये समझ नहीं आया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, डी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, अरे भाई मतलब इसके केवल 3 सवाल थे क्या, विच इज ऑड वन आउट, एफ सी जी एच, एफ सी जी एच, तो अननोन यूज होगा इसका, तो यार क्या ही मतलब सवाल दे रखा, ठीक है। इसमें कह रहा है ए सिटिंग इन थर्ड प्लेस फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है 1 2 3 ए, देयर इज टू पीपल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है ए और सी के बीच में 2 लोग हो गए। देयर इज़ 1 पर्सन बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 1 पर्सन है, सी और डी के बीच में एक आदमी है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ई इज़ टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, ई इज़ टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, तो ई सेकेंड लेफ्ट हो गया डी के। और इसके बाद एच इज़ टू द फिफ्थ राइट ऑफ सी, एच जो है वो सी के फिफ्थ राइट है, यानी 1 2 3 4 5, लीजिए एच भी हो गया। सी ए इज़ एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, ए एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, हु इज़ राइट टू द ए, एफ जो है ए के राइट में है, बी लेफ्ट में है और ए बीच में है, सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, ठीक है। जी टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे, जी जे के सेकेंड लेफ्ट में है, जी जे के सेकेंड लेफ्ट में, यानी जी यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ सकता है, जी सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जे हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो जी यहाँ नहीं होगा, जी यहाँ होगा, यहाँ आई होगा, ठीक है। हु सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ई एंड एच, हु इज इन द पोजिशन ऑफ डी,
विद रिस्पेक्ट टू एच, टी की पोजीशन एच रिस्पेक्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 7, 7th to the left। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू, सी एंड बी आर नेबर्स? नहीं। देयर इज 1% बिटवीन बी एंड एफ? यस। जे इज एट एक्सट्रीम एंड? नो। एच इज 2 पीपल अवे फ्रॉम डी? नहीं। बी इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड आई? नहीं। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड आई? तो जी और आई के बीच में है जी। अच्छा, ऑल एप्पल्स आर फैन, एप्पल्स फैन है। सम एप्पल्स आर ग्रे, वेरी फ्यू फैंस आर ग्रे। वेरी फ्यू मतलब वही कि सम फैंस आर ग्रे, सम फैंस आर ग्रे, बिल्कुल ठीक है। नो फैन इज ग्रे, ऐसा गलत है, पहला सही है। सम कैट्स आर प्लेट्स, सम कैट्स आर प्लेट्स, ये ठीक है, तो हम बना लेते हैं नो प्लेट इज कैट, प्लेट ये है, कैट ये है। ऑल वैंस आर प्लेट्स, और जितनी वैंस हैं वो प्लेट्स हैं, तो सम कैट्स आर प्लेट्स नहीं। नो वैन इज कैट, यस। सम प्लेट्स आर वैंस, यस। सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ऑल मैंगोज आर फिग्स, यस, बना लेते हैं मैंगोज फिग्स। सम फिग्स आर स्काई, नो बैट इज़ मैंगो, बैट का मैंगो से कुछ कनेक्शन नहीं है, बैट का मैंगो से नहीं है, लेकिन बैट का फिक्स हो सकता है। सम फिग्स आर मैंगोज, सम फिग्स आर मैंगोज, बिल्कुल ठीक। सम स्काइज आर बैट, नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती है। सम स्काइज कैन बी मैंगो, इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस, इट इज़। पहला और थर्ड कह रहा है ऑल फोन्स आर कैप्स, फोन्स और कैप्स। नो कैप इज़ मैप, कोई कैप मैप नहीं। और सम मैप्स आर बोट्स, कुछ मैप्स बोट्स हैं। तो नो कैप इज़ अ बोट, तो नो कैप इज़ अ बोट होगा। देखो, नो कैप इज़ अ बोट, ये बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और पूरी तरीके से साफ नहीं है, ठीक है, तो नॉट फॉलोज। सम बोट्स कैन बी फोन्स, सम बोट्स कैन बी फोन्स, यस, बिल्कुल। ओनली सेकेंड फॉलोज। पजल आ रही है, ठीक है, पजल तो करेंगे। There are 10% are sitting in 2 parallel rows. 10% are sitting in 2 parallel rows containing 5 people each. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। There is equal distance between 2 adjacent persons, ठीक है। In a row ABCD are seated, ABCD, और सारे फेस नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो ABCD यहाँ, ABCD यहाँ, ठीक है। और LMNOP दूसरी तरफ है, मतलब साउथ में सिट कर रहे हैं। LMNOP, ठीक है। जो एलिमेंट ईच मेंबर सीटिंग इन द रो फेसिंग अनदर मेंबर ऑफ द रो, अच्छा ठीक है। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी डी के राइट में सिट करता है सेकंड पे, तो बी यहाँ हो सकता है और डी यहाँ हो सकता है। डी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, जैसे यहाँ पे डी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, ठीक है। मैं अभी 2 ही बना रहा हूँ, तीसरी पोजीशन भी हो सकती है, जैसे कि अगर बी यहाँ हो और डी यहाँ हो, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। आगे कह रहे हैं दिस इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। इसके बाद लिखा है हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, अच्छा डी मिडल में है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और द पर्सन फेसिंग बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, जो बी को फेस कर रहा है वो एन के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो ये लीजिए है बिल्कुल लेफ्ट में हो गया। एल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में एल सिट करता है। ओनली 2% बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच 2 ही लोग बैठते हैं, पी यहाँ हो गया फिर। और इसके बाद कह रहा है ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी,
ई जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी नहीं ई यहाँ होगा यहाँ ये होगा, ठीक है। ओ डज नॉट फेस ई, ओ ई की तरफ नहीं है तो ओ यहाँ होगा, ठीक है ना। और बचा क्या फिर, एल एम एन एम बचा, और कह रहा है सी इज़ नॉट फेसिंग एन, सी इज़ नॉट फेसिंग एन यानी ए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, एल सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एल सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ ओ नहीं, ओनली 3% सिट बिटवीन पी एंड ओ, नहीं, ओ सिट्स एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो, यस, दो ऑप्शन तो नहीं है इसमें, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग ए को कौन फेस कर रहा है, ए को फेस कर रहा है एम, वो अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग एम को फेस कौन कर रहा है, ई। फोर द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे, कौन कौन से हैं, एन ओ पास पास हैं, सी ई पास पास हैं, ए बी पास पास हैं, पी ओ दूर हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सी की पोजीशन क्या है बी के रिस्पेक्ट में, तो सी की पोजीशन है लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ठीक है भाई। अब आ रहा है इसमें कोडिंग डिकोडिंग या अल्फान्यूमेरिक है ये सीरीज़। हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बट प्रीसीडेड बाय सिंबल, अनदर सिंबल, कितने सिंबल ऐसे हैं इनके पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल पीछे कॉन्सोनेंट नहीं, फिर सिंबल सिंबल पीछे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं है, फिर सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं, सिंबल सिंबल नहीं, नन यार। फोर द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, आई एल एट द रेट, ठीक है, 1 2 -2 ए एच परसेंट, ए एच परसेंट, ए एच परसेंट, इसमें चल रहा है ए एच परसेंट, आई एल ए एच 1 -1 ऐसे चल रहा है, के एफ ई के एफ ई के एफ ई ए एच परसेंट, मुझे तो आई एल एट द रेट ही अलग अलग लग रहा है मुझे तो। If all the numbers are dropped from the above arrangement, which element would be the fifth to the left from left से fifth to the left of 11th element, तो 11th element लेफ्ट से और जो एलिमेंट होगा उसके फिर फिफ्थ से, तो विच एलिमेंट वुड बी द, तो माइनस कर लेंगे 11 में से 5 गया 6 पे देखना है, सारे नंबर ड्रॉप कर दें 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पे हमारा एल आ रहा है यार। मेरा इफ ऑल नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, दिस एलिमेंट विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से लेके 11 पे जाएगा, वहाँ से फिर उसके फिफ्थ को देखेगा, तो वहीं पहुँचेगा ना, 11 में से 5 गए 6, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एल आ रहा है यार, एल, none of these. In the following question, select the related letters from given alternatives. BG L7, BG L7, BG दो छोड़े L7, फिर दो छोड़े A%, फिर दो छोड़े FK. Here, how many such vowels are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a symbol and also preceded by consonant. How many such vowels are there in the above arrangement? तो कितने वॉवल्स हैं अरेंजमेंट में, तो वॉवल्स हैं जिनके पहले आ रहा है एक सिंबल, नहीं बाद में आ रहा है सिंबल, पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, वॉवल इनके पहले आ रहा है, इनके बाद में आ रहा है सिंबल, सिंबल A%, एक मिला, ठीक है।
एक ही मिल पाया है, ठीक है। एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, कौन सा लेना है? सेकंड, C, फोर्थ, N, फिफ्थ, O, सिक्स्थ, W, सेवन्थ, L। कह रहा है इससे कोई वर्ड बनाओ, तो क्या बनेगा इससे कोई वर्ड? इससे बनेगा नॉक्वल, OLN, C से बनेगा क्या? L से, LO, क्लोन, क्लोन बनेगा, क्लोन। तो कह रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड C। अब अगला आ गया पजल। पजल कर लेंगे क्या? 7 persons ABCDEF purchased some items ABCDEF, ठीक है। और क्या क्या लिया इन्होंने? इरेज़र लिया है, पेन लिया है, टीवी, प्रिंटर, माउस, मग, फ़ोन, ठीक है। ए परचेज माउस, ए ने माउस लिया, और ए और ई के बीच में 2 लोग हैं। ई डिडंट कम फर्स्ट और लास्ट, ई फर्स्ट भी नहीं है लास्ट भी नहीं, तो ई बीच में होगा, ठीक है। एज मैनी पर्सन केम आफ्टर ए केम बिफोर एफ, तो एफ के पहले जितने हैं उतने ही एफ के बाद में हैं, मतलब ए के बाद में है। तो ए के बाद मान लो एक और है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एफ कहाँ होगा? एफ यहाँ कर लें, क्योंकि कितने 3 3 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो एफ को यहाँ कर लेते हैं, ए वन कितने 1 2 3 4, तो एफ को यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। नहीं यार, इस वाले को ना उठा के इधर ही ले आ। तो अब देख, एफ बट ई फिर लास्ट में हो जाएगा, ई एफ ए ई, माउस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। यार ये तो गलत ही बुरा सवाल। कह रहा है एज मैनी एज कम आफ्टर ए, मैंने जो बनाया था मुझे ऐसे लेना चाहिए था, ए यहाँ पे, माउस ये, और ये यहाँ मैं एफ़ ले लेता हूँ, तो एफ़ 3 3 6, 1 2 3। नहीं यार, ए ई ई, एफ यहाँ पे, तो 1 1 2 3, ए के बाद 1 2 3 3 3 6। एफ को यहाँ लिया जाए तो 1 2 3, 1 2 3 1 2 1 2 3। एफ को यहाँ लिया जाए तो 1 2 3 1 3 3 6।
ओफो, इस बार तो यार ज़्यादा ही गलत हो गया सवाल। तो देख सकते हैं इस बार का स्कोर रहा है 70.5, एक्यूरेसी 92.31% रही है। रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम की कमी रहेगी इस बार, पजल की वजह से। ये पजल थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 कर पाया हूँ, इंग्लिश में 25 ठीक हुए हैं 30 में से। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने किए हैं कितने किए हैं, मतलब 25 किए हैं, 25 ठीक है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। इंग्लिश में 5 गलत हो गए हैं। और रीजनिंग में शायद मेरे हिसाब से तो रीजनिंग में, हाँ रीजनिंग में भी एक्यूरेसी ठीक है, बट यहाँ पे परसेंटाइल यार कुछ खास नहीं बन रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी। और देख सकते हैं इंग्लिश में थोड़े से 5 गलत हो गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़े तो नहीं हैं। और 2 रीजनिंग में गलत हुए हैं, तो यहाँ मुझे रीजनिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और इंग्लिश की जो, मतलब ये इंग्लिश है, इसके भी जो पैसेज वगैरह हैं, क्योंकि पैसेज ही गलत हो रहे हैं ज़्यादातर, या ये कह सकते हैं कि एरर वाले जो हैं गलत हो रहे हैं, उनको मुझे चेक करना है अपने दोबारा से। तो इंग्लिश में 4 गलत हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, आज ये सेकंड मॉक था मेरा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।